Now, I would like to call our speaker, Ms. Janvi Tanwar, to present her insight on the topic Resurrection of Bateshwar Group of Temples, Morena. Good evening, everyone. This is Janvi from Mata Sundari College for Women. I welcome you all to the 64th session of GSTS, that is Graduate Scholar Talk Series, presented by Shamlal College Evening. I would like to thank the Shamlal College Evening also for giving me a chance to bring out the identity of such a beautiful monument. Also, I thank Dr. Shashi Bhushan Singh for giving his valuable presence in this session. I'm glad to have you here, sir. So, uh, we all know that heritage of India holds an important place in the world, with Taj Mahal being in the seven wonders of the world, to Hampi, Halabir, and various other World Heritage sites. India holds immense heritage, culture, and history in herself. पर क्या आपको पता है कि ऐसे कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की आज तक डिस्कवरी ही नहीं हो पाई है और जिनकी हो भी गई है उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया है इसी जॉनरे से हमारा बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल भी बिलोंग करता है एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू Before starting the topic, I would like to add that I'm still a student, and this was the first monument I visited from the academic point of view. I observed the architecture of this monument, and it is possible that I might have missed some points. But one has to start from somewhere, and this was my starting point. तो सबसे पहले तो आप सब अभी यह इस वंडर में होंगे कि हम एकदम से सडनली बटेश्वर की बात क्यों कर रहे हैं सो आई एम obliged टू टेल यू कि ये मंदिर हाल ही के 15 साल में टूटे फूटे पत्थरों से एक विशालकाय मंदिर समूह में परिवर्तित हुए हैं और यह चमत्कार किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्स रीजनल डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ डिवीजन मिस्टर के मोहम्मद और उनकी टीम के द्वारा और हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके अथक प्रयासों की सराहना करें व अपने देश की संस्कृति को और भी अच्छे से समझें Now you'll be wondering, what's so special about Bateshwar temples? What does it hold? Let me tell you, surrounded by the forests and ravines of Chambal in a 25-acre area, Morena holds one of the most beautiful temple complex. In this meeting, we are going to talk about these objectives. Introduction to the Bateshwara complex. Why was Morena chosen for the construction of these temples? इन मंदिरों का डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया और occupation of the dacoits over the area and finally the restoration work carried out by the Archaeological Survey of India. ये मंदिर मध्य प्रदेश के मोरेना जिले के पड़ावली गांव में स्थित हैं और यहाँ जाने का सबसे बेस्ट तरीका ग्वालियर जंक्शन से कोई ऑटो रिक्शा या कैब फैसिलिटी ले लेना ही है हालांकि बस फैसिलिटी भी यहाँ जाने के लिए अवेलेबल है You can enjoy that too. ASI ने अब तक 200 में से 80 मंदिरों का रेस्टोरेशन वर्क पूरा कर दिया है और यह करने के लिए चंबल के प्रसिद्ध डाकुओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा जिसमें उनकी जान को भी खतरा था इस टॉपिक पर भी हम बहुत ही विस्तार में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे So now I want you all to see the conditions of these temples in 2004 when the restoration work wasn't even started. These were the pictures taken by the Archaeological Survey of India's team. आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितनी बुरी हालत में है. It just looks like a pile of garbage dumped over an area. But if you look at the present image, आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आप उसी साइट को देख रहे हैं. That's the magic done by Archaeological Survey of India. तो आप ही बताएं, ये पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है? That's why we are using resurrection word over here. अब इस मॉन्यूमेंट के इतिहास की ओर हम थोड़ा रुक करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड मैनर में जानते हैं इन टेम्पल रूइंस के आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर से हमें पोस्ट गुप्ता टू प्रतिहारा पीरियड की झलक दिखाई देती है इन मंदिरों का कंस्ट्रक्शन 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था इनको बनाने का श्रेय गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों को दिया जाता है It is said that it was the ruler Mihir Bhoja
who ruled from 836 to 885 AD, who commissioned the project of the construction of these temples. ये मंदिर हमें उस समय की भक्ति कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि हम आज बनारस, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ इत्यादि को एज ए डिवोटी हब की तरह देखते हैं, वैसे ही यह भी उस समय में इतने ही प्रसिद्ध मंदिर रहे होंगे। हमें यह भी बताया गया है कि यह तांत्रिकों के लिए भी एक प्रसिद्ध स्थान रहा था, और कुछ तो आज भी यहाँ विजिट करते हैं, स्पेशली 64 योगिनी टेम्पल, जो कि बटेश्वर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऑल्सो इतने सारे मंदिर with that much architectural accuracy and beauty cannot be possibly made by some weak dynasty. इन मंदिरों की प्रेजेंस हमको बताती है कि प्रतिहार वंश अपने समय का बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश रहा होगा, और इस क्षेत्र में उनका दबदबा भी काफी ही रहा होगा। मिस्टर के मोहम्मद अपने इंटरव्यूज में यह भी मेंशन करते हैं कि दिस साइट सर्व्ड एज अ ग्रेट स्कूल ऑल्सो। दूर दूर से लोग यहाँ ज्ञान अर्जित करने आते थे। So now moving to the next topic. Now it is also a question that why was only Morena chosen for the construction? So to clarify it, I must tell you कि यह परिसर भले ही अब unknown and hidden है, परंतु ऐसा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में नहीं था। मिस्टर मोहम्मद बताते हैं कि उस समय यह स्थान ट्रेड रूट पर लोकेटेड था। बहुत से हिस्टोरिकल सिटीज जो आज डेजर्टेड है पर उस समय बहुत फेमस थे, वे सभी ऐसे ट्रेड रूट्स पे ही बने थे। परफेक्ट एग्जांपल इज अजंता एंड एलोरा। Caravans used to pass from Bateshwara and enter Vidisha and other various prominent places of that time. साथ ही साथ यह एक सिद्ध स्थान भी माना जाता था। मिस्टर मोहम्मद हमको सिद्ध स्थान के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि यह ऐसी लोकेशन होती है जहां कोई नदी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न या टिल्ट होती है। एंड व्हाई ओनली नॉर्दर्न डायरेक्शन? ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर का जो प्रणाल होता है जहां से अभिषेक जल निकलता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टेम्पल ऑफ इंडिया, वेदर इट बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इट इज सेम फॉर एवरीवेयर। हालांकि यह नदी की प्रेजेंस नहीं है बिकॉज चंबल इज फार ऑफ फ्रॉम देयर, बट एट द सेम टाइम वहां के जो माउंटेन्स हैं वो नॉर्दर्न टिल्ट ले रहे हैं, and this made the place a सिद्ध स्थान। सिद्ध स्थान होने के कारण यह भी मिस्टर मोहम्मद बताते हैं कि यहाँ राजा शायद अपनी मन्नतें पूरी होने के उल्लास में मंदिर बनवाते थे। The material used to be there already and the ruler used to give an order to make a temple and it will be made then and there. As most of the temples are identical and have very minute difference, यह भी पॉइंट आउट किया जाता है कि यह स्थान प्रयोगशाला ऑफ टेम्पल्स की तरह यूज किया जाता होगा शायद। इस जगह के सुनहरे इतिहास को जानने के बाद हमारे मन में यह सवाल तो अवश्य आता है कि क्या कारण रहा होगा इतने विशालकाय मंदिरों के डिस्ट्रक्शन का। So let's move to the next slide. Yes. हिस्टोरियन सतीश चंद्र की बुक मिडीवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स में वो मेंशन करते हैं कि महमूद ऑफ गजनी के 1019 और 1021 के एक्सपीडिशंस ने राजपूत राजाओं के उसके खिलाफ कोएलिशन को तोड़ने का काम किया। इसी कारण पावरफुल चंदेल रूलर ऑफ बुंदेलखंड डिस्प्लेस्ड द प्रतिहार रूलर फॉर हिज डिस्ग्रेसफुल फेलियर टू रेजिस्ट महमूद ऑफ गजनी। इसके बाद इस राजवंश ने कोई शक्तिशाली राजा नहीं देखा एंड बिकॉज ऑफ दैट द डायनेस्टी लेड टू अ डाउनफॉल। उसके बाद इस जगह को किसी और डायनेस्टी से भी कोई फाइनेंशियल और कल्चरल सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। पड़ोसी क्षेत्रों में भी प्रतिहारों के मित्रों से ज्यादा दुश्मन थे। Historian Upinder Singh also mentions about the tripartite struggle between Rashtrakutas, Palas and the Gurjar Pratiharas. And finally, in 13th and 14th century, there was a massive earthquake जिसने कुतुब मीनार को भी काफी डैमेज किया था। फिरोज शाह तुगलक के भी अकाउंट्स में इस अर्थक्वेक के बारे में मेंशन है कि उसने कैसे कुतुब कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन वर्क को शुरू करवाया था।
इसी अर्थक्वेक को इन मंदिरों से भी लिंक करा जाता है, and it is considered that it caused major destruction in many portions of the temples, and finally they collapsed. Now let's fast forward to the 20th century and see what was going over there at that time. By 1930s, चंबल फॉरेस्ट पर डाकुओं का कब्जा हो चुका था। इवन यहाँ के जोग्राफिकल फैक्टर्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ के घने जंगल, 80-90 फीट गहरी घाटियां, इन सब फैक्टर्स ने पुलिस का वहां जाना भी इम्पॉसिबल कर दिया था। But for dacoits, these routes were local, and इसलिए अगर पुलिस जैसे तैसे वहां पहुंच भी जाती थी, तो वे वहां से भाग खड़े होते थे या फिर पुलिस पर ही हमला कर देते थे। यहाँ पर भी काफी dacoit ग्रुप्स सक्रिय थे। Many dacoits like Madho Singh, Man Singh, Nirbhay Singh Gujjar, these all were present there, and उनके ऊपर पता नहीं कितने हजारों burglary, kidnapping and murder के केसेस चल रहे थे, जिनमें से कुछ पुलिस के लिए भी थे कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स तक को मार गिराया था। बट इन सब चीजों का डर एक तरफ रखते हुए ASI ने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया। हालांकि 1924 में ही इस साइट को ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, पर उसके बाद भी 80 सालों तक यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। Cunningham also visited there, and he also stated that there is a presence of approx 100 temples over there. Little did he know that one day it will be found out that there is a presence of 2 times of the temples than he expected. And finally 2004 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर के मोहम्मद ने इस साइट पर काम करने की ठानी। इंटरमीडिएट सेटअप किए गए जो दोनों पक्षों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ASI चंबल फॉरेस्ट के बीचों बीच खतरे से भरी जगह पर काम शुरू करके गलती तो नहीं कर रही। बट as the motto of the ASI says, let us uncover the glory of past. It is irrespective of the hurdles of the site. काम शुरू करने के लिए पहले dacoits की परमिशन ली गई और के मोहम्मद को एक गिवन टाइम पीरियड में गेटवे एंड 3 टेम्पल्स का रिस्टोरेशन वर्क करने की अनुमति दी गई थी। You can see how everything is working as per the conditions of dacoits, and ASI को भी खुद की वर्दीनेस को यहाँ प्रूव करना पड़ रहा है। एंड के मोहम्मद एक और स्टोरी के बारे में काफी बार बताते हैं। उस समय रिस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका था और मिस्टर मोहम्मद कॉम्प्लेक्स में घूम फिर रहे थे, सिचुएशन का जायजा ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मंदिर के आगे बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। अब उन्हें यह देखकर ऑब्वियसली गुस्सा आ गया, एंड ही वेंट देयर एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मंदिर के आगे बैठकर यह सब कर रहे हो। तभी जो इंटरमीडिएरीज उनके साथ थे, जिनका नाम है जसवंत सिंह, वह उनसे कहने लगे कि इस व्यक्ति को आप कुछ ना कहें, और उस व्यक्ति को आप कहकर संबोधित भी किया। इतने से ही मोहम्मद समझ गए कि यह कोई बड़ा डाकू है और अब तो भागने से भी नहीं बचेंगे। तो वो उनके पास जाकर बैठ गए और अपने कार्य के बारे में उन्हें बताने लगे। And the scenario is that the dacoit is at an upper position and के मोहम्मद at the pleading one. वह डाकू था निर्भय सिंह गुज्जर। अब धीरे धीरे दोनों के बीच बातें हुई तो मोहम्मद ने उन्हें कहा कि आपको इन मंदिरों के उद्धार के लिए यहाँ भेजा गया है। यह मंदिर ही आपके पूर्वज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं ने बनवाया है और यह आपका धर्म बनता है कि एक गुर्जर होने के नाते आप इसके रिस्टोरेशन में हमारी मदद करें। After this, Nirbhay Singh Gujjar became spiritually dedicated to the temple, as now a private connection had been made by Mr. K. Mohammed. He then used to help ASI by even going out of the way. Mr. Mohammed also requested him to vacate the mound on which the temples were located and relocate on some other mound. इस पर भी निर्भय सिंह गुज्जर ने पॉजिटिव रिएक्शन ही देते हुए मदद करने की कोशिश की और फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि ASI would work at that site till 6 p.m. and after that dacoits would come there as the place was also worshipped by dacoits. जो भी लूटपाट करके वो सामान लाते थे उसका डिवीजन वो यहाँ पूजा करने के बाद ही करते थे।
It was kind of a tradition for them. Now, let's take a break from the stories and finally talk about the restoration work carried out by Archaeological Survey of India. This is Mr. K.K. Mohammed, who did the restoration work over there. Now you will see a series of pictures of before and after shots. So yeah, this is the first one. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एएसआई को डेकॉइट्स ने केवल एंट्रेंस गेट एंड 3 टेम्पल्स को रेनोवेट करने की परमिशन दी थी. So the ruins of the entrance gate went from this to this in a span of just 15 years. जब एएसआई की टीम यहाँ पहुंची तब सिर्फ एक ही पिलर, you can see this one, and उसके upper part, this one, was present there. But obviously for the construction of a entrance gate 2 pillars की आवश्यकता पड़ेगी. तो जब भी एक आर्कियोलॉजिस्ट को कोई चीज ऊपर जमीन के ऊपर ना मिले तो वह जमीन के नीचे ही उसे ढूंढता है. So finally an excavation was carried out, or as a result came out another pillar base with a pillar itself. अब जब सब parts मिल ही गए हैं तब finally steel rods व एरेल्डाइट के सपोर्ट से पिलर्स को खड़ा कर दिया गया, and this is how the gateway was made up. Isn't it beautiful? So now moving to the next temple. इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 80% शिव मंदिर है and others are of Vishnu, Shakti and one of Lord Hanuman also. So अब कैसे पता लगाया जाए कि ये मंदिर विष्णु मंदिर है या शिव मंदिर? So इसके लिए भी Mr. Mohammed हमको समझाते हैं कि how did he verify what kind of temple this is. So you can see this space over here, right? If this space is rectangular and elongated, then it would be a place where Nandi might have been situated. But if this place is in square shape, then it would be a Vishnu temple, as it would be a space for a Garuda Stambha. और यहाँ पर यह gap rectangular and elongated ही था, which meant it is a Shiva temple. The next task was to find the Nandi. And while taking a parikrama of the temple, Mr. Mohammed recited a mantra, Vahanam Vrishabho Yasya, Vasuki Kantabhushanam, Vame Shakti Dharam Devam, Vakaraya Namo Namah, which means, जिसका वाहन वृषभ यानी नंदी है, कंठ में जिसके वासुकी नाग है और जिसके वाम में देवी शक्ति का वास है, उन शिव को नमन. This mantra actually describes the physical surroundings of Lord Shiva. And इसी परिक्रमा के बीच उन्हें एक छोटा सा क्यूट सा नंदी मिल गया, which fitted perfectly in that gap. इसके बाद इस टेम्पल का सारा कंस्ट्रक्शन हुआ and finally it started looking from this to this. इस मंदिर के वेदी बंदा, that is the base portion पर vines यानी बेल के carvings हैं with 2 flowers on both of the ends. And the Shikhara was renovated on the top. And here is the Amalika. Now, see the sculpture of Lord Hanuman. You know that this sculpture was also worshipped by the dacoits? At first, it just looks like a normal Hanuman sculpture. But when you look carefully, you'll find 2 figures under his feet. So, who are they? लॉर्ड हनुमान को कई देवी देवताओं से वरदान प्राप्त थे और कामदेव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि उन पर काम यानी सेक्सुअल डिजायर्स का कोई असर नहीं होगा. इसीलिए कहा भी जाता है कि हनुमान काम का मर्दन करते हैं. इसी को डिपिक्ट करने के लिए दिस स्कल्पचर हैज बीन मेड. बट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस वन? देयर आर मेनी स्कल्पचर्स जिनके अंदर कामदेव को ऐसे डिपिक्ट किया गया है, बट द speciality in this one is it also has Rati in it, that is the wife of Kamadeva. So moving to the next slide. Yeah, ये particular area actually बंजर है. dacoits की वजह से यहाँ पे उस समय लोग आया जाया भी नहीं करते थे और चंबल रिवर भी यहाँ से काफी दूर ही है. And water was obviously needed, and ऐसी sites के restoration के काम के लिए भी ample amount में पानी चाहिए होता है.
लोग हालांकि जितना हो सकता था उतनी मदद करते भी थे, फिर भी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी. So the team of ASI started to look out for ruins of some water body over there. और तभी यहाँ 2 water tanks के अवशेष मिले. And then ASI started to clear it out and did some excavation work. And finally, these water tanks got filled with copious amount of water. इस डेवलपमेंट को देखकर even निर्भय सिंह गुज्जर said, मन चंगा तो कठौती में गंगा. And finally, the problem of water shortage was solved. Now, when we see this before restoration image, we can see that this whole temple had been literally eaten by the roots of a tree. And to save this temple, this tree is mandatory to be cut. और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पेड़ को काटने के लिए पहले उस पेड़ से, फिर उस पर रह रहे पक्षियों से and उससे related other various small creatures से भी permission लेनी पड़ती है. And ASI did the same and cut the tree. और उसके बाद यह पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. इसके बाद मंदिर को एक strong foundation दी गई and finally it was re-erected and it started to look like this. अब इस भी इमेज में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स के अंदर. These temples are built in a row and are east facing in a Nagar style. Similar to the previous temple, this one also has vines and flowers demarcation on the Vedi Vanda, along with 2 lion motifs on each corner, and there are gavakshas over the shikhara. The shikharas are beautifully carved, and on the top is the Himalaya. First मंदिर में कुछ goddesses के motifs हैं, and in the second one, Yavanikas, in सबके भी motifs है, and in the last one, there is a depiction of Lord Hanumana. It just looks like that, and which is carrying Sumeru Parvat in his hand, and the various gods and goddesses are praising him. Now, this is the second row of temple. When the restoration work was being done, this place had only temple ruins and 5 staircases. 3 can be seen here and 2 are on the opposite sides. It was identified that there will be a presence of 6 temples in these ruins. Or finally, this row of temple was constructed. In the 4th temple from left, there is a special carving of Dashavataras of Vishnu, which are Matsya, Kurma, Narsimha, Vamana, Parshurama, Rama, Krishna, Buddha, and Kalaki. The temples have 2 Amalekas and 3 have Kalasha on the top of them. You can see these 3 have Kalasha on the top. Now I would like to tell you कि इस मंदिर समूह में 2 तरीके के मंदिर हैं. First being temples with shikhara and others are Mandapika temples. The Mandapika temples are a feature of Gupta and post-Gupta architecture. Hence, Mandapika temples are dated back to 6th century and the shikhara ones from 9th century onwards. Now, how did they verify that this is a Mandapika temple? Because only ruins were present over there. So Mr. Muhammad tells us that they found pieces of only 21 ruins over there belonging to this temple. Usually उन्हें 35 से 40 टुकड़े मिलते थे. And when they started working on it, it started connecting and this particular architectural style, and hence this was the beautiful temple made. This is the final monument we are going to see. It is located just outside the entrance gate of Bateshwara complex. As we know, Gurjar dacoits ने ASI की काफी मदद की थी in developing this beautiful site. Nirbhay Singh Gurjar was their head. इस इंसिडेंट के बारे में मिस्टर मोहम्मद मेंशन करते हैं कि Nirbhay Singh Gurjar knew that he would be shot dead by the police in near future in his end time, क्योंकि उसके भाई को भी शूट कर दिया गया था because obviously he was a dacoit. And he used to express his grief in front of Mr. Muhammad. So to give a gift to him as an honor for helping out in the work, Mr. Muhammad and his team decided to name this temple, which was earlier known as Dodamat Temple. They finally renamed it to
Nirbhay Singh Gujjar temple and told him that your name will live on even after your death. इस टेम्पल के अराउंड एक ग्रेट डिप्रेशन है, as you can see this, and it indicated that there might have been a huge Adhisthana staircase. So that was conserved. This Adhisthan is of 15 to 16 feet, and इसकी सीढ़ियों पर चढ़कर आप एक मंदिर तक पहुंचते हैं. And this is the temple, which you'll see over there. और you find this temple over there. इस मंदिर के पिलर्स पर काफी ब्यूटीफुल कार्विंग्स है ऑफ डांसर्स, और गर्भगृह के एंट्रेंस पर भी ब्यूटीफुल कार्विंग्स है ऑफ लॉर्ड कुबेरा, गणपति, and with their sevakas. The Purna Kalasha structure is also carved on both of the pilasters, you can see here. So this was the discussion on the temples of Bateshwara. Interesting, wasn't it? But still, many of the sites like this have not even been recognized yet. One of them has been encountered by me too, that is Bhuteshwara Temple Complex in Asapuri near Bhopal. And there are many more. Also, the organization which conserves these temples, that is Archaeological Survey of India, is even unknown by many folks. But why? Why is it not being given the recognition it deserves? Why tourism of these beautiful monuments is not being given enough importance? And even if we see that archaeology term itself is unknown by many. The famous national universities like Delhi University, JMI, JNU do not even have archaeological courses for students in them. And many colleges do not even have archaeological department in them. And even if one does complete his education in this field, then he doesn't get good job opportunities and are paid very less. If we won't have people to conserve this heritage, then how will the motto of ASI be successful? I want to rest my speech over here with these questions and would love it if there can be some positive steps in these sectors. Thank you. Thank you so much, Janvi. It was really a very wonderful talk, and it was so full of information. It was so interesting that we really hope कि वो talk continue होते रहना चाहिए. Like why you literally stopped. So now we all also have some questions from our listeners. The first question is from Ajay Gupta. Ajay, if you can ask the question yourself. Okay, so that was really nice talk, Janvi. So the question that I want to pose is that do you think that the restoration work that has been done by ASI, they have kept the original sensitivity of that particular complex that it used to be in the Gujar Pratihara's time, the kind of structure, the art and architecture and everything, or do you think like you have already visited that place? So do you, or have you find that the original sensitivity has been sacrificed there? Listen Ajay, actually इस temple complex के ऊपर ज़्यादा thesis लिखा नहीं गया है, so we don't particularly know कि ये कैसे दिखा करते थे. But still, गुर्जर प्रतिहार styles के कुछ अपने features होते हैं जो यहाँ पे preserve करने की कोशिश की गई है. ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से 12वीं शताब्दी में ये दिखा करते होंगे वैसे अब नहीं दिखते हैं. मतलब कुछ इनके एलिमेंट्स प्रिजर्व किए गए हैं, बट आई कांट से कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिपिक्ट कर दिए गए हैं. So, yeah, this was my answer to your question. Okay. So Janvi, the second question is from Miss Archana Bharti. Archana, if you could ask the question. Okay. So basically, she's asking, do you think that restoration of religious places is as important as other tourist places? And what other places did you find in your research that needs restoration? देखिए, religion has been a major part of our culture from a very long time. And if आप उस कल्चर को ही नहीं रिस्टोर करेंगे तो क्या फायदा? हमारे पास और कोई चीजें हैं नहीं रिस्टोर करने को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये सब चीजें हैं, बट स्टिल अब हमारे पास एक आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस होना चाहिए उस एक साइट के बारे में बताने के लिए, उसको और एक्सप्लेन करने के लिए. एंड जब रिलीजियस एक्टिविटीज तो हमेशा से होते ही आई है, हड़प्पन टाइम से चल रही हैं. सो
I think it is very important to conserve these cultural things, and even if they are religious, whether it be Mughal architecture or it be temples. So yeah, this is my answer. Okay. So the next question is from Shubhi Singh. She is asking कि वहां पर वाटर टैंक बताया गया है, स्टेप वेल क्यों नहीं? देखिए, ऐसे ये एक्चुअली आर्किटेक्चर रहा है मोस्ट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस का। ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पे वाटर टैंक्स ही बनाए गए हैं। एक्चुअली स्टेपवेल इज यूज बाय मैनी लाइक पीपल, हर जगह हो सकते हैं, उसे कोई भी यूज कर सकता है। बट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक चीज बनाई जा रही है, तो उनको सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। स्टेपवेल्स अपना एक अलग पर्पस प्ले करते थे, एंड वाटर टैंक्स का एक अलग इम्पोर्टेंस था। So yeah, this will be the answer. Okay, so that's all. And Janvi, also do tell us about your journey of GSTS and your experience with the team. सबसे पहले तो GSTS टीम को थैंक करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया टू गिव इंफॉर्मेशन एंड टू एक्चुअली रिसर्च ऑन दिस टेम्पल। सो एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस टीम के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। मिस्टर मनीष सर ने मेरी बहुत हेल्प की इन एक्चुअली गेनिंग द material about the temple, and also the team gave me a lot of suggestions, and I hope मैंने उनकी expectation पे खरी उतरी हूँ मैं। So I would say कि इस team ने मेरा बहुत साथ दिया है, and I would like GSTS to keep continuing like this, and yeah, this is what I was just want to say. Okay, so moving ahead, now I would request our guest teacher to please present his final remarks and give us valuable wishes for the platform. Thank you, Shivi. Thank you, others. Manish ji, may I take 5 to 6 minutes? Hello, I'm यस audible. सर, यस सर, यस सर, यस सर, So, यस सर, हाँ हाँ, actually, ये आप ऑडिबल भी हैं, दिख भी रहे हैं। और थैंक यू सर ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि आप तबीयत आपकी ठीक नहीं है, लेकिन इट्स ए ग्रेट प्लेज दैट यू आर हियर सर। इट इज ग्रेट प्रिविलेज टू मी आल्सो यार, है ना। मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता था, बहुत अच्छा लगता है आपका। खैर मैं अगले शब्दों में सब बात कहूंगा ही। मैं 10-5 मिनट के अंदर ही अपनी बात खत्म करूंगा और 2-3 पार्ट में होगी मेरी बात। पहले तो सबसे पहले मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग और मनीष जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये मेरे जैसे टीचर के लिए ये एक कह सकते हो कि बड़ा इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है। मैं अपने कॉलेज में बार बार बच्चों के बीच में, और अगर इसको थोड़ा और ऑनेस्टली कहूँ तो शायद सप्ताह में एक बार जरूर चर्चा छेड़ता हूँ अपनी क्लास में कि हम श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से सीख सकते हैं क्या। पता नहीं क्यों हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेक्चर सीरीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है आप लोगों का और आप बच्चों का पर्टिकुलरली, टीचर तो देखो बच्चों के ही भरोसे चलता है। टीचर कितना भी दौड़ लगा ले कहाँ जाएगा वो, तो बच्चे ही तो उसके कंधे होते हैं, बच्चे ही तो उसके जंघे होते हैं। बच्चा अगर नहीं चलता है। श्यामलाल इवनिंग कॉलेज के बच्चों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, हेड्स अप टू यू ऑल गाइज। बेहतरीन है आप लोग का एफर्ट। मनीष भाई को जितना कहूँ कम ही होगा, छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन बहुत बेहतरीन आप सब। इसके बाद मैं जानवी आपको सुनना और आप जैसे बच्चों को सुनना, लगता है सच में हिस्ट्री में देश का भविष्य बेहतर है, बहुत बेहतर है। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ मोनोटोनस स्कॉलर्स नेशन इन हिस्ट्री फर्दर मोर। मुझे लगता है कि हम बहुत फेयर माइंड वाला फ्यूचर देख रहे हैं। हमारे पास जो हिस्ट्री में, मैं शायद 1-2 लाइन ऐसा बोल दूं कि आप लोगों को कुछ खराब भी लगे तो उसको मेरा पर्सनल ओपिनियन मान के रखिएगा, कि अभी तक हम लोग देखते रहे हैं कि हम स्कूल्स में बैठ के हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री को कम पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब वो चाहे हमारी अपनी प्रोफेशनल लिमिटेशंस हो, कंपल्शंस हो, या हमारे टूल और मैकेनिज्म हो, जैसा चर्चा थोड़ी देर पहले जानवी ने करी थी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब लगता है कि आप जैसे बच्चे अगर इस तरह से और इस जैसी टीम, इस जैसा एफर्ट, लगता है कि भारत को हिस्ट्री का एक तरह से कह सकते हो कि हब बना देगा हिस्ट्री राइटिंग का फ्यूचर में। बातें बहुत सी होती हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बहुत से हैं हिस्ट्री के, आजकल तो और ज्यादा हिस्ट्री पर बातें हो रही हैं। मोस्टली हम हिस्ट्री में पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं दरअसल, बहुत कम लोग जेन्युइनली हिस्ट्री की बात करते हैं। अभी मुझे लगता है 10-12 दिन या शायद 20 दिन पहले की बात है, हाँ 20 दिन पहले की बात है, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट के मोहम्मद जी इन गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा।
I was with him for 2 longer sessions, मतलब whole of day। और मेरा एक पहला जो क्वेश्चन था अवनीश भाई, वो बड़ा पॉलिटिकल और नोटोरियस था। वो स्टार्ट करने के लिए मैंने उनसे पूछा था कि शायद इससे कुछ और खुले। तो मैंने कहा कि आपको मुसलमान होते हुए ऐसा करते डर नहीं लगता? इट वाज प्लान्ड क्वेश्चन। मतलब कोई और तीसरा सुनता तो कहता कि बड़ा इडियट है, इसको किसने टीचर बना दिया। लेकिन मैंने सोचा कि इससे कुछ शुरू करूंगा तो के मोहम्मद साहब एकदम ओरिजिनल से निकलेंगे, जेनरिक। तो बैठ गए मेरे पास आके, बोले एकदम मैं चाहता था कि चाय के बाद आपके साथ बैठूं, लेकिन इस सवाल का मैं बिना जवाब दिए नहीं। देन ही सेड कि यस, डर लगता था, अब नहीं लगता है। मैंने कहा क्यों नहीं लगता है? बोले देखो, जब फौज में ना हम होते हैं, बॉर्डर पर कोई हमारा सैनिक खड़ा होता है तो घर से चलता है, युद्ध के टाइम में डर लगता है उसको, लेकिन दुश्मन जब सामने होता है बॉर्डर पर, तब उसको नहीं डर लगता है। हम अब हिस्ट्री के लिए वो करने जा रहे हैं, आर्कियोलॉजी के लिए वो करने जा रहे हैं, अब किसी से नहीं डर लगता है। और इस नाते नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इस नाते नहीं डरता हूँ कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, और आई एम डूइंग माई जॉब। निर्भय गुर्जर वाला जो एपिसोड है, उन्होंने बड़े लंबे से सुनाया था, बड़ी लंबी कहानियां है, मुझे हंसी आ रही थी, और मनीष भाई को भी देख रहा था, बहुत खुश थे सुन करके। अगर कहानी मैं सुनाऊं जैसा उन्होंने मुझे सुनाया था, और आपने भी सुना है, अच्छी बात है। तो एक बड़ा लंबा एपिसोड है, बड़े अलग अलग तोहमत लगे, एक तरह से कह सकते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा वाली कहानी है। निर्भय गुर्जर बहुत बड़े बदनाम हो गए थे, उनका एनकाउंटर हुआ, तो नो वन इज गेटिंग टू बाय हिम एज एन hero of the society, but no doubt in particular case of Bateswara temple complex, he has done something heroic। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा काम किया, बहुत जेनरस होकर उन्होंने बातें की है। रही बात बिहड़ों में, बिहड़ों के आसपास जो लोग बात करते रहे डकैतों को लेकर के, वो शायद उनका नेचुरल हाइड आउट है, या जो इन लोगों पर शुरुआत में अटैक हुआ, जैसा कि उन्होंने कहा, शायद वो खाना के चक्कर में करते थे, और इंश्योर करना चाहते कि इनके आसपास रहेंगे, अगर पुलिस रेड करती है तो 2-4 को तो हॉस्टेज बना ही लेंगे, तब तक बच जाएंगे, और उसके बाद हम लोग कहीं निकल जाएंगे। तो खाना, हॉस्टेज बनाना, अपनी जान को बचाना, मतलब दे वर नॉट प्लान्ड हाईजैकर और किडनैपर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। वो जानते थे कि ये लोग यार अबोध से लोग हैं, इनका क्या हम बिगाड़ेंगे, चाहिए किस लायक है। हाँ, फॉर द डकॉयट्स ऑफ, मतलब चंबल ना, पढ़े लिखे लोग बेचारे होते हैं, तो उनको ऐसे भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, व्हाट ही वाज विलिंग टू से टू मी। तो एक तो ये रही बात जो रेस्टोरेशन और सिलेक्शन की, उनका जो मोहम्मद साहब का था, जैसा कि जानवी ने करीब करीब पूरा ही रख दिया सामने उनका काम। वो प्लंडरिंग तो देखो महमूद गजनी एक्सपेक्टेशन के टाइम हुआ है वो, लेकिन एक टाइम था हिस्ट्री में जब हम 60s के बाद थोड़ा हमारा ESI के पास फंड आने लगा, हम वेल ऑफ होने लगे, तो हम 2-3 चीजों से अब अलर्ट होने लगे या फाइट करने लगे। हमारी मजबूरी थी टू सिक्योर आवर नेशनल सेकुलर इमेज, क्योंकि हम पार्टीशन के पेन से निकले थे, तो हम वो ऐसे इशूज को या केसेज को जानबूझ करके कहीं साइड करना चाहते थे। तो उन सब चीजों से हमने जानबूझ करके डाइवर्ट किया। इसमें कुछ लोग वही स्कूल थ्योरी भी लाते हैं कि कौन स्कूल ने क्या किया, कौन स्कूल ने क्या किया। कुछ प्लेसेज के नाम से स्कूल है, कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम से स्कूल है, कुछ आइडियाज के नाम से हैं, लेकिन एक टॉपमोस्ट प्रायोरिटी थी कि चलो नई बिटरनेस पर ना जाए। अदरवाइज ये प्लंडरिंग जो हुई है वो इनके समय हुई है, महमूद गजनी के टाइम में हुई है और विन कर दिया गया। और इसके बाद जो चीजें, जो अर्थक्वेक थ्योरी लाई जाती है, ये थ्योरी देखो यही नहीं लाया जाता है। कंदरिया महादेव टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो खजुराहो वाला है, यहाँ तक माना जाता है, लेकिन ये कोई ऐसी बेल्ट बनती नहीं है। जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी हम यूज करते हैं, वैसी बेल्ट इतनी एक्सटेंसिव नहीं बनती है कि हम मान लें कि इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है। और अगर हुआ है तो फिर उस टाइम पीरियड में से चली आ रही और भी बिल्डिंग एकदम अजाय बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बच गए, ये बड़ा एडमिसेबल नहीं है इजिली। लेकिन ठीक है, ये दोनों हम आइडिया लेकर चलते हैं। एक तीसरी बात जो इसको लेकर के है, शायद ये बिल्डिंग का जो मटेरियल था या जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वो 2 कारणों से फ्रेजाइल रही। एक तो वो लोग शायद उतना फोकस नहीं कर पाए। जब हम नागर और वेसर का एक डेवलपमेंट देखते हैं, एक जर्नी देखते हैं, तो क्या कहेंगे उसको, लगता है कि हम वापस आ गए वहीं। जैसे आपने सेकेंड लास्ट जो स्ट्रक्चर दिखाया, वो देवगढ़ दशावतार टेम्पल के आसपास फिर पहुंच जाता है।
लगता है अगर मान लो फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग टू बी सो कॉल्ड अपोजिट ऑफ दिल्ली सल्तनत या टर्क्स अराइवल इन इंडिया, मैं थोड़े देर के लिए केस स्टडी की बात करता हूँ कि अगर टर्क्स ना आए होते इंडिया में, क्योंकि आप देखेंगे इसी रूट से कुछ ही दिनों बाद अल्तमस इन्वेड करता है उज्जैन को, तो प्लंडरिंग होती है। फौज जब जाती है ना, तो जब उसके पास वो बिलीफ है कि वो जिहादी है, वो मतलब गाजी वार लड़ रही है, वो काफिर को सबक देगी, और वो इस मामले में उस फौजी को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। दरअसल वो अपने सो कॉल्ड द सेंस ऑफ प्योरिटी, होलीनेस और हेवन सीट वाले आइडिया पे चलता है, जिसको इंटॉक्सिकेशन ऑफ माइंड कहते हैं। तो कर देता है प्लंडरिंग। हमें नहीं कह सकते डायरेक्ट, राजा नहीं कह दिया कि प्लंडरिंग करो, फौज अपने आप कर देती है ना। एसपी साहब जिले में बैठे रहते हैं और दरोगा किसी को मार के चला जाता है 4 लाठी, तो हम कहते हैं एसपी दोषी है। वैसा नहीं होता होगा, हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन होता था। तो समस्या ये थी कि जो इस टाइम जो इन लोगों ने मतलब बनाया ये सारी चीजें, तो इनके पास शायद उस तरह के सोर्स मटेरियल नहीं थे। अगर ये कंटिन्यू कर गया होता ट्रेडिशन और टर्क्स नहीं आए होते, तो मुझे लगता है ये वेसर और नागर का बेस्ट मिक्सचर जाता है यहाँ से। और इसका आप जब देखेंगे ना, आप लोग सब ओशिया देखेंगे, जो मोढेरा देखेंगे अहमदाबाद का, चाहे जोधपुर का ओशिया, तो लगता है क्या कमाल का डिपार्चर है। तो शायद ये इतना बढ़िया बनता जा करके, लेकिन ये कहीं रुक गया। तो ये तो शायद सोर्स मटेरियल की इनकी समस्या थी। एक दूसरा बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी। लाइम स्टोन्स है यहाँ पे, लाइम स्टोन्स को बहुत पानी रेगुलरली चाहिए, अगर पानी नहीं रहेगा तो क्रैक्स आएंगे और वो गिर जाता है। तो एक ये भी थ्योरी है। तो मेरे समझ से पेपर तो बड़ा शानदार था जानवी में, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत बेहतरीन था। बच्चों की तरफ से सवाल जो आया था उसमें एक दो सवाल जो था वो इंटरेस्टिंग लगा कि कोई नॉन रिलीजियस कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं। हाँ, करना चाहिए, जैसा कि जानवी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि कर सकते हैं, लेकिन हम अभी तक वही करते रहे हैं, नॉन रिलीजियस ही करते रहे इतना दिन तक। 73, 4, 5 ईयर्स में हम कर रहे हैं, वही कर रहे थे। तो अगर ये नया कर रहे हैं तो ये खराब बात नहीं है। ये हो सकता है कि हम और फंड ले, गवर्नमेंट हमें और फंड एक्सटेंड करे, हम नॉन रिलीजियस जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है कि हम कोई रिलीजियस कॉम्प्लेक्स प्रिजर्व करते हैं, पर्टिकुलरली के मोहम्मद। क्योंकि के मोहम्मद को आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, पढ़ने लायक पर्सनालिटी है। अयोध्या आर्कियोलॉजी पर जब उनका रिपोर्ट है, तो आप लोग उस स्ट्रगल को पढ़ेंगे, तो जैसे जानवी कह रहे थे कि हम आर्कियोलॉजिस्ट बने, हमारा करियर बने, तो आप सबके लिए के मोहम्मद एक हीरो फिगर है। मतलब आप लोग जरूर उनको पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए, दो जो आर इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी। तो मैं ये कहूंगा। दूसरा स्टेप वेल का है, तो देखो ये फ्लैट रूफ पर लाया गया वाटर वेल है, और वो जो कहते हैं ना कि पैर धोने के लिए, नहा करके पूजा करने के लिए, तो वो एक स्टोरेज यूज किया गया। स्टेप वेल थोड़ा डीप जाएगा। तो एक है। रह गई बात ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करना, ये एक डिबेटिंग है। जो सवाल है ना, ये सवाल तो बहुत अच्छा है, अजय का शायद सवाल था, बहुत शानदार सवाल है, बहुत स्मार्ट सवाल है, बहुत प्रोफेशनल स्किल का सवाल है। लेकिन इसके आड़ में जो लोग ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अजय, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट बिहाइंड द क्वेश्चन, जैसे कि अक्सर दूसरे जगहों पर उठाया जाता है, व्हाट इज अबाउट ओरिजिनलिटी। आप लोग जाएंगे लाल किले में, क्या हम लाल किले को ओरिजिनली प्रिजर्व कर पाए हैं? तो सवाल क्यों नहीं आता है लाल किले पर? तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई अदर वे प्ले चल रहा है कि न खेलेंगे न खेलने देंगे वाली बात? तो शायद कुछ ऐसा है अजय, इसमें वो नहीं लेना है। हम माने कि एक एफर्ट तो कर रहे हैं, कम से कम हमारे पास एक आर्कियोलॉजिस्ट है के मोहम्मद, तो हम इतनी अचीव कर सकते हैं। हमारे बच्चे आप जैसे अगर 10 भी के मोहम्मद आ जाए आप में से निकल करके, तो वी विल हैव everywhere but Esora type complexes. Thank you Janvi, thank you Manish, thank you Samlal College evening team, thank you all, thank you for inviting me. Thank you so much, sir. Now moving ahead, I would like to call the speaker for next week, Ms. Tanishka, to present a brief about her topic. A very good evening, everyone. I, Tanishka, student of BA Honours Political Science of Shamlal College Evening, got the chance in Graduate Scholars Talk series. I'll be giving my talk next Sunday, and the topic of my talk will be legal age of marriage for women from 18 to 21. मैं अपने टॉपिक में सबसे पहले बात करूंगी बैकग्राउंड के बारे में, प्रपोजल के बारे में बात करूंगी। प्रपोजल का क्या बैकग्राउंड रहा? आवर प्राइम मिनिस्टर Shri Narendra Modi ji, during his Independence Day speech last year, had made a mention of the proposal. The decision is based on the recommendation of a 4-member task force led by former Samta Party President Jaya Jetli,
also had on board Niti Aayog member Dr. V.K. Paul and several secretaries. नंबर 2 में बात करूंगी हिस्ट्री की। भारत में शादी की मिनिमम एज के लिए अंग्रेजों के समय से कानून बनते आ रहे हैं। तो मैं इसके अंदर आजादी से पहले की भी बात करूंगी और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की भी बात करूंगी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से चेंजेस आए। नंबर 3 में बात करूंगी प्रॉब्लम्स एराइजिंग आउट ऑफ अर्ली मैरिज। कौन कौन सी परेशानियों का लड़कियों को सामना करना पड़ता है ड्यू टू अर्ली मैरिज। नंबर 1 अर्ली प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। नंबर 2 fall in high fertility age group. Number 3 vulnerable to sexual transmitted disease. इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगी। And the last is main motive of the proposal. गवर्नमेंट ने ये शादी की उम्र जो बढ़ाई है 18 से 21 करी गई है, इसका मेन मोटिव क्या है, क्यों सरकार ने ये 18 से 21 शादी की उम्र बढ़ाई है, इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगी। So that is all about my topic for now, and please prepare yourself for a very interesting 65th talk series next week, and I hope you all will find it very interesting. Thank you so much.